পেহেলগামে জিহাদি হানার ঘটনায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জোরদার প্রত্যাঘাত করছে। শুরু হয়েছিল অপারেশন সিন্দুর। ভারতীয় সেনার লড়াই আর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাচ্ছে হাওড়ার এক শহীদ পরিবার। তারা জানিয়েছেন যেভাবে ভারতীয় সেনা যোগ্য জবাব দিয়েছে তাতে তারা খুশি। তবে পরিবারের আক্ষেপ একটাই, পুলওয়ামা হত্যাকাণ্ডের 1 মাস আগে ঘরের ছেলেকে তারা যেভাবে হারিয়েছেন সেই সময় কিন্তু নড়ে চড়ে বসেনি কেন্দ্রীয় সরকার। তা যদি হতো তাহলে পুলওয়ামা হত্যালীলায় একসঙ্গে এতজন সৈন্যকে দেশ হারাতো না। শালকিয়ার ডবসন রোডের যুবক বিনয় প্রসাদকে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। তিনি ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার পদে ছিলেন। 2019 সালের 15 জানুয়ারি জম্মুর কাটুয়াতে ডিউটি করে যখন ছাউনিতে ফিরছিলেন সেই সময় অতর্কিত আক্রমণ করে জিহাদিরা। সেই অবস্থাতেও তিনি গুলির লড়াই চালিয়ে যান। সেই দিন রাতেই বাড়ির লোকের কাছে ফোন আসে, বিনয় আর নেই। বাড়িতে স্ত্রী, মেয়ে, বাবা, মা, ভাইয়েরা ভেঙে পড়েন কান্নায়। তার মা শকুন্তলা দেবী আজও ছেলের স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে এসেছেন। ছেলের কথা বলতে শুরু করলে চোখে জল এসে যায়। তিনি বলেন, টিভিতে দেখেছি কিভাবে পেহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের ওপর তাদের স্ত্রীর সামনে জিহাদিরা নৃশংসভাবে শেষ করে দিয়েছে। ওদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে পাক মদতপুষ্ট জিহাদিদের ঘাঁটিগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে তাতে আমি খুশি। সন্ত্রাসবাদ দেশ থেকে নির্মূল হওয়া প্রয়োজন। কি বলছেন শহীদের মা শকুন্তলা देवी, শুনবো। लेकिन उस टाइम तो लिए नहीं कुछ। अब लड़का को हुआ फरवरी में 45 ना कितना आदमी मरा, बस में बम मार दिया। तो उस टाइम तो कुछ सरकार नहीं किए। उस टाइम से अलर्ट होगा तो आज ये घटना होता पहलगाम में नहीं होता। उस टाइम में अगर ऐसा हो जाता जो सरकार अभी कर रहे हैं उस टाइम करते तो इतना नहीं होता। तो आपको अभी जो अटैक कर रहा है इंडिया ने, जो स्टेप लिया है, आप खुश है? हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप क्या चाहते हैं? सब आतंकवादी लोग के हटा दे, मार के पूरा खत्म कर दे कि हम लोग का देश शांत रहे। किसी की माँ का कोल खाली ना हो? नहीं, माँ रो रही है, बेटा बाप रो रहा है, जिसका बाप बूढ़ा है उसका क्या सहारा रहा, जवान बेटा को खो दे रहा है। आप चाहते हैं आतंकवाद को? हाँ, खत्म कर दें, लेना चाहिए था। 2019 সালে 14 ফেব্রুয়ারি জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হানায় নিহত হয় 40 জন সিআরপিএফ এর জওয়ান, যা গোটা দেশকে হতবাক করে দেয়। শহীদের দাদা রাকেশ প্রসাদের আক্ষেপ, এই ঘটনার 1 মাস আগে জম্মুর কাটুয়াতে তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর যদি কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিত তাহলে পুলওয়ামায় জিহাদি হামলা হতো না। তিনি বলেন, সেদিন যদি জিহাদিদের বিরুদ্ধে ঠিকমতো অপারেশন হতো তাহলে অত বড় হত্যাকাণ্ড ঘটতো না। তবে এবারে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে আমরা খুশি। আমরা চাই জঙ্গিদের নিকেশ করা হোক, সন্ত্রাসবাদ শেষ হোক। কি বলছেন রাকেশ প্রসাদ, শহীদের দাদা, শুনবো। तो हम बाहर निकले हुए थे, अपना वाइफ का ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर गए थे, बेलोर गए थे। हमको तो पता ही भी नहीं था कि क्या हुआ है। 15 तारीख को हम जब रिटर्न आ रहे थे तो मोटा मोटी हावड़ा आने के पहले मेरा मोबाइल में फ़ोन आया, वहाँ से फ़ोन आया था। कहाँ से? वहाँ कटुआ से ही, जम्मू से ही फ़ोन आया था। कौन फोन किया था? तो कोई मतलब स्टाफ ही था, अच्छा, बीएसएफ का कोई स्टाफ था। मेरे पास फ़ोन आया तो आधा बात सुनाई दिया, आधा में सुनाई नहीं दे रहा, कट जा रहा था फ़ोन। फिर उसके बाद हावड़ा स्टेशन पर हम उतरे, अपना वाइफ को लेकर बाहर निकले, तब तो फिर दोबारा उसका फ़ोन आया। तब हमको समझ में आया कि वो मतलब बताया हमको कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। हम सिर्फ उससे यही पूछे कि सर वो भाई मेरा ठीक है, तो बोला नहीं, स्पॉट पे ही ये दम तोड़ी है। उसके बाद वही अपना वाइफ को बताया तो वो भी रोने लगी, हम भी रोने लगे। घटना वो जैसे वो अपना ड्यूटी पे ही था तो वहाँ पे गया था अपना स्टाफ को ही लेके ड्यूटी समझाने के लिए। पहाड़ पे गया, वहाँ से जब वो रिटर्न आ रहा था तो वहाँ से फायरिंग का, स्नाइपर से वो लोग फायरिंग किया है। पाकिस्तान से टेररिस्ट पाकिस्तान से ही मतलब फायरिंग हुआ था। तो वो आके उसको लगा, तो वहाँ पे उसका जो हमको फ़ोन किया था वो वहाँ पे स्पॉट पर था, वही हमको सब आकर यहाँ बताया कि ऐसे से हुआ था।
पूछे उनसे क्या क्या हुआ है, तो बोला कि वो सर का जब गोली लगा, हम लोग बोले कि सर चलिए आपको हम लोग नीचे लेके जाते हैं, पहाड़ के नीचे ट्रीटमेंट होगा। तो वो बोला कि नहीं, हम लोग को जब तक पाकिस्तान को नहीं जवाब देंगे हम नहीं उतरेंगे। उनका स्टाफ कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो ये अपने खुद से ही फायरिंग स्टार्ट करने लगा। फायरिंग करने लगा तभी इनका जवान जो भी था वो लोग भी फायरिंग करने लगा। तो मेरे भाई की तरफ से फायरिंग होने लगा, तो वो 3-4 टेररिस्ट कुछ इसको भी मारा है। वहाँ मारने के बाद वहाँ से जब गोलाबारी बंद हुआ तभी अपना लास्ट में मोटा मोटी आपका 1 घंटा के हिसाब वो लड़ाई किया वहाँ पे। और उसके बाद जब वहाँ से गोलाबारी बंद हुआ तो वो बोला कि अब हमको लेकर नीचे उतरो। अब वहाँ से गोलाबारी बंद हुई है तब हम उतरेंगे। माने गोली लगा फिर भी वो लड़ा? हाँ, गोली लगने के बाद वो मोटा मोटी 45 से 46 मिनट लड़ाई किया। जब वहाँ से गोलाबारी बंद हुआ तब वो अपना स्टाफ को बोला अब हमको लेकर नीचे उतरो। वो पहाड़ से जब लेकर उतरने लगे वही रास्ता में भी उनका डेथ हो। আমরা বলছি কি যা মোদি সরকার করছে ভালোই করছেন, যেরকম লোক ওরকম জবাব দিচ্ছেন। जिसे हम लोग को हिंदी में बोला जाता है कि लातों को बातों से नहीं मानते हैं, ये लुलात का ही भाषा समझते हैं। वो जवाब वो दे रहे, प्यार से समझाने से समझता ही ये नहीं है। ये आम पब्लिक जो भी है वो क्या घटना की है, वो लोग तो अपना घूमने गए, फालतू में उनको मारा ही है। तो ये जवाब उनको तो देना ही था, तो जवाब जो भी किया अच्छा। टेररिस्ट अटैक बंद होना चाहिए, एकदम खत्म बंद नहीं, एकदम टोटल ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि आराम से सब रहे यहाँ पे। किसी का भी बच्चा भाई जो भी है वो खुश रहे। आपका भाई का जब ये घटना हुआ तो तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज जो हो रहा है, जैसे जवाब दे रहा है इंडिया, तो आपको क्या खुश लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ये तो उस समय ही जवाब देना चाहिए था। उसके कुछ दिन बाद पुलवामा घटना हुआ था, तो यहाँ टीवी पर भी बता रहा था कि जब ये शहीद विनय प्रसाद के संग में ये चीज़ हुआ था उस टाइम सरकार काहे नहीं उन लोग को जवाब दिया। इसलिए दुख नहीं लगता तो ये वही चीज़, उसका घटना हुआ जनवरी में, अब पुलवामा घटना आपका फरवरी में हुआ था, 14 फरवरी को हुआ। तो ये चीज़ उन लोगों को उस टाइम ही जवाब देना चाहिए था। 15 जनवरी का ये जो घटना हुआ था उस टाइम तो उन लोग जवाब नहीं दिए, तो वहाँ तो चुप हो गए थे। ये वहाँ पर फिर आपका इतना आदमी शहीद हुआ तब इन लोगों को पता चला कि ना है, जवाब दिए इन लोग भी। उसके बाद ही पुलवामा अटैक हुआ? हाँ, उसके बाद ही। सरकार उस तरफ ध्यान देना तो ऐसा नहीं, उस टाइम ध्यान नहीं दिए। वो एक मान लीजिए हम लोग आम, जिसे हम लोग जो भी आम है कोई दिया नहीं। यहाँ का भी सरकार हम लोग को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक बार भी कोई ध्यान देने आया नहीं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ मतलब खाली आश्वासन दे के चला जाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।